Hello and welcome back to the world of mathematics. We were discussing class 6 chapter 1, that is numbers are friends. So let's begin. In today's video we are going to discuss about the Roman numbers. Roman numbers and the rules for the Roman numbers, that how do we write Roman numbers and Roman numbers लिखेंगे कैसे. So let's start with the introduction first. Roman numbers, they had 7 basic symbols. We should know that रोमन नंबर्स में 7 बेसिक हमारे सिंबल्स है विच वी आर गोइंग टू रिमेंबर. दैट इज I for 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000. दैट मीन्स IVX LCDM. तो ये हमारे पास 7 बेसिक सिंबल्स है दैट आर रिप्रेजेंटिंग हिंदू अरेबिक सिस्टम्स. So the next we are going to discuss about the rules for the Roman numbers. So the first rule says, हमारा first rule क्या कहता है? If a symbol is repeated one after the other, अगर हमारा symbol repeat हो रहा है one after the other, जो उसकी value होगी that is added. That means if suppose we have this symbol, that means 1 plus 1 plus 1, that is 3. X, that means 10 plus 10, that is 20. अगर symbol हमारा repeat हो रहा है तो हम उसकी सारी values को add कर देंगे. Okay. Let's see what does the second rule says. Second rule हमारा कहता है the symbol I, X, C and M can be repeated up to maximum 3 times. जो हमारे ये वाले सिंबल्स हैं ये हमारे मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं. वी कैन नॉट रिपीट इट फर्दर. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड इफ यू रिमेंबर 4 को हम कैसे लिखते हैं? दिस इज 4. तो रिपीट हमारा 3 टाइम्स हुआ है. ऐसे ही 10, 20, देन 30, 100, 200, 300 एंड सिमिलरली विथ 1000. तो मैक्सिमम हमारा जो सिंबल है वो रिपीट होगा 3 टाइम्स तक. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट रूल सेज. द सिंबल्स V, L, D कैन नेवर बी रिपीटेड इन रोमन न्यूमरल्स. दैट मीन्स जो हमारे ये है V, L and D, दैट इज 5, 50 एंड 500, ये हमारा कभी भी रिपीट नहीं होगा. अगर सपोज हमें 5 plus 5 10 लिखना है, वी विल नॉट यूज 5 plus 5. This is wrong. We will write it as 10. So this is our Roman number 10 and not 5 and 5. तो ये वाले कुछ ऐसे numbers है that is never ever repeated. That is V, L and D. Okay. So the next rule, rule number 4 states that if a symbol with the smaller value is written on the right of a symbol with the greater value, बड़ी वैल्यू के राइट साइड पे अगर लिखा है देन वी आर गोइंग टू एड इट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव इज दिस, दैट इज 10 प्लस 1 प्लस 1. क्योंकि हमने 1 क्यों ऐड करा? बिकॉज 10 की राइट साइड पे 1 है. अगर ये 10 की लेफ्ट साइड पे 1 होता है दैट मीन्स 10 माइनस 1 इट वुड हैव बीन 9. ये नेक्स्ट रूल आएगा. तो अगर हमारा बिगर वैल्यू के राइट साइड पे छोटी वैल्यूज है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एड इट. LX 50 plus 10 that is 60. 5 plus 1 that is 6. ओके. अगर ये 5 के राइट साइड पे 1 होता है दैट मीन्स 5 minus 1 that is 4. The next rule states that if a symbol with the smaller value is written on the left, we are going to subtract it to the value. That means अभी एग्जाम्पल दिया 4 का, that means 5 minus 1. क्यों हुआ? बिकॉज 5 की लेफ्ट साइड पे 1. 10 minus 1 that is 9. So स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड पे है ग्रेटर वैल्यू की, देन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. ये याद रखेंगे हम. ओके. सो द नेक्स्ट रूल टू रिमेंबर इज the symbols V, L and D are never written to the left of a symbol with the greater value.
अगर हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होगी तो ये वाले सिंबल्स कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखे जाएंगे. द नेक्स्ट स्टेज I can be subtracted from V and X only. I सिर्फ V और X से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 4, 9 ये सिर्फ इसी से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हमारा नहीं हो सकता है. Similarly, we see the next one states X can be subtracted from L and C only. That means X वैल्यू और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. Similarly, C can be subtracted from D and M only. I किस से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? V and X only. X सब्ट्रैक्ट हो रहा है L and C only. C सब्ट्रैक्ट हो रहा है D and M only. So this is the thing to remember. Let's move on to the next. Rule number 7. Now rule number 7 के अंदर हमारे दो rules आ रहे हैं. Let us see क्या है. If the value of the symbols from left to right decreases or remains the same, we add the value of the symbols. Now इसका क्या मतलब हुआ? हमने कहा लेफ्ट साइड से शुरू करा एंड राइट साइड पे जब हम जा रहे हैं अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम उसे ऐड कर देंगे. दिस इज सिमिलर लाइक जो अभी हमने रूल पढ़ा था. अगर बिगर वैल्यू की राइट साइड पे छोटी वैल्यू लिखी हुई है देन वी आर गोइंग टू ऐड इट. सी 100 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 1. दिस इज द सेम रूल बट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट. Similarly, m 1000 plus 100 plus 10 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1. So it will be 1123. नेक्स्ट वाला जो सब पार्ट है वो इसका ऑपोजिट होगा. साइड पे हमारी स्मॉल वैल्यू लिखी है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. चीज हो रही है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. कैसे? सी CM 100 minus 10 90. सो बेसिकली अब बिगर वैल्यू की लेफ्ट साइड पे हमारी स्मॉल वैल्यू लिखी है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. दैट मीन्स 1000 minus 100 दैट इज 900. Similarly 100 minus 10 90. So basically rule 7 is the repetition of what we have studied in earlier in this video. This rule is nothing new rule. Okay. All these rules you are going to write it down in your notebooks with their examples. सारे rules आप लिखेंगे with their examples. And let's move on to the next rule. Next rule says that a bar over any numeral means that numeral is multiplied by 100. Bar is what? For example, हमने x लिखा है उसके ऊपर bar लगाई है. This symbol is called as bar. हमने कहा कोई भी बार किसी भी न्यूमरल के ऊपर दैट मीन्स उसकी वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स 10 इंटू बार है दैट मीन्स 1000 दैट इज 10,000. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल v के ऊपर बार है यहाँ पे दैट मीन्स 5 इंटू 1000 दैट इज 5000. सो बेसिकली रूल्स आर वेरी सिंपल बट इट शुड स्ट्राइक यू एट द मोमेंट. इसलिए हम इसे रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे एज मच एज वी कैन. जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतने रूल्स हमारे दिमाग में बैठते जाएंगे. So we will be continuing with the exercise of these Roman numbers in the next video. Till then, please note down all the rules with their examples in their notebooks. Stay happy, stay safe, and thank you so much.